Hello friends, welcome back to my channel TNC IT Solution. Today we will discuss context-free grammar and the types of derivation, that is leftmost derivation and rightmost derivation. So it's also revision. You have already studied that concept in theory of computation, but I will discuss it in detail because it is necessary for further topics. So please read properly. Okay. So we'll start the context-free grammar and its type of derivation trees. It is comes under syntax analyzer phase. So it is the first video lecture on syntax analyzer. So syntax analyzer required the basic knowledge of context-free grammar, because in context-free grammar we will use to derivation tree and also called parse tree. There are two types of parse tree or parse tree presentation, that is top down derivation tree, top down parse tree, or bottom up parse tree. So we will discuss both types of parsing techniques in further videos. Today topic is only based on types of derivation, not uh, reduction. Means we will discuss only top down tree here. Okay. So next is, as we see the syntax analyzer input and output. Previously we have discussed that slide very much in detail. So stream of tokens is the uh, input of the syntax analyzer, and output is parse tree. Yes, and we have discussed also parse tree is top down or bottom up parse tree. So here also we will concentrate on context free grammar and the parsing techniques. Yes, so there are two types of parsing techniques, basically top down and bottom up. So revise that slide, that video also. I will give you the link here. Yes, so please revise that slide before uh, going ahead on that videos. Next is, you know very well the definition of context free grammar. Informally, a context free grammar is a set of rules for deriving strings of tokens, or you can say sentences in case of natural languages, in a language using some parser. Here, using some parsing techniques, we should derivate the strings or tokens and check the validity of the strings. CFG can be defined using four tuple forms. G is equal to V, T, P and S. Here, friends, you know what is the meaning of VTPS? Just remember it. V represent finite set of non-terminal or variable. Here, T represent finite set of terminals or tokens. So input is a stream of tokens. That means जो भी input है वो terminals हैं. Here, remember that thing. जो भी input है वो terminals हैं, वो ही input symbols हैं. So V means non-terminals or variables. T for terminals or tokens. Here, P for production rules. Finite set of production rules. Production rules will be defined as, in formal languages we have discussed before, that is alpha drives to beta. That is a basic structure of any production rules for any grammar. But in context free grammar, alpha drives to beta means alpha belongs to V. What is V here? V representing set of नॉन टर्मिनल्स. क्लियर. सो किसी भी एक नॉन नॉन जितना भी सेट है नॉन टर्मिनल का, उसमें से कोई एक अल्फा की पोजीशन पे होगा, नॉन टर्मिनल ओनली, एंड बीटा बिलोंग्स टू v comma t whole star. Yes, we know that what is the meaning of whole star. Whole star means all possible combination of non-terminal and terminal, v and t. Yes. So beta belongs to all possible combination of terminal and non-terminal. That means beta doesn't have any restriction. Here, right hand side of production may contain any combination of terminal and non-terminal.
क्लियर. एंड व्हाट इज एस? एस रिप्रेजेंट स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर. क्लियर. जैसे फाइनाइट ऑटोमेटन में इनिशियल स्टेट है, ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर. ग्रामर का स्टार्ट सिंबल क्या रहेगा? दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ डेरिवेशन ट्री व्हाट शुड बी द रूट नोड. क्लियर. I think you will understood that concept. Clear. Definition is important. The four tuple forms are important. So remember these four tuple forms: V, B, P, and S. Next is example of CFGs. These are the some examples of valid CFGs. Just see it. S drives to ABC. राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो 3 नॉन टर्मिनल, लेफ्ट हैंड साइड में भी नॉन टर्मिनल, राइट में भी नॉन टर्मिनल, तो वैलिड है. आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अगर CFG की वैलिडिटी चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल द प्रोडक्शन. क्लियर. इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेशन सिंबल. दैट इज अ डेरिवेशन सिंबल. डेरिवेशन सिंबल्स के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए. ऑल द कैपिटल लेटर्स जनरली रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनल. क्लियर. एंड राइट हैंड साइड कोई भी कॉम्बिनेशन चलता है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल कोई भी कॉम्बिनेशन. तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्शंस में क्या है? राइट हैंड साइड कंटेन 3 नॉन टर्मिनल्स. इन सेकंड प्रोडक्शन राइट हैंड साइड कंटेन 1 टर्मिनल 1 नॉन टर्मिनल. ये भी वैलिड है. नो एप्सिलॉन. क्लियर. एप्सिलॉन मीन्स नथिंग, ना टर्मिनल है ना ही नॉन टर्मिनल है. दैट इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज इट कंटेन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल. तो 0 टाइम टर्मिनल, 0 टाइम नॉन टर्मिनल. क्लियर. आपको शायद याद आ रहा होगा. नेक्स्ट, तो ये सब वैलिड CFGs हैं. एंड जब आपको इस तरह की CFGs मिलती हैं, ये अलग अलग प्रोडक्शंस हैं, आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो लाइक दैट. इन दोनों को कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं? A drives to AA oblique epsilon. Likewise, B drives to BB oblique epsilon. C drives to CC oblique epsilon. Clear? So these are the example of CFGs. You can understand the what is CFG or not, which productions belongs to CFG or not. Some more valid examples are, these are the valid CFGs. You can see all the right hand left hand side contain only one non terminal, एंड राइट हैंड साइड जो ऑब्लिक के थ्रू हमने कनेक्ट किए हैं, राइट हैंड साइड ऑफ ऑल द प्रोडक्शंस कंटेन आइदर टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. यू कैन से सम इनवैलिड CFGs आर right hand side contain all possible combination, no problem. Beta is belongs to all possible combination, but left hand side should belongs to only a single non terminal. But here invalid CFG, you can see that more than one terminal or more than one non terminals are available. So these are not the CFG. ये context free grammar नहीं है. क्लियर. ये कोई दूसरी ग्रामर होगी बट ये context free नहीं है. अभी हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है what is valid or what is invalid. Here, so I think that is more than sufficient for understanding the context free grammar. Now we will move to derivation types or derivation tree. Derivation is based on the two particular techniques, leftmost or rightmost. Before that, derivation is a process used to check the validity of string or syntax of the statement using grammar or rules. Grammar मतलब grammar is nothing but the set of rules. Clear. Context free grammar की help से आप derivation tree generate करोगे for the particular input string. Clear. अगर tree generate होता है तो वो valid है, अगर tree generate नहीं होता तो वो invalid है. Clear. For one CFG, for one context free grammar, there may be multiple derivation tree for different input string. Remember this thing. एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से n नंबर ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकते हैं. क्लियर. नंबर ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स आर नॉट लिमिटेड टू ए CFG. एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से नंबर ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकते हैं और हर इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक डेरिवेशन ट्री डेफिनेटली होगा. क्लियर. एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए कितने डेरिवेशन ट्री? एटलीस्ट वन डेरिवेशन ट्री विल बी अवेलेबल. वन का मतलब है वन LMD और वन RMD. क्लियर. वन LMD मीन्स वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड वन, आप स्ट्रिंग को किसी भी पर्टिकुलर वे से डेरिवेट कर सकते हैं. आप लेफ्ट मोस्ट
डेरिवेशन ट्री के हेल्प से कर सकते हैं और राइट मोस्ट डेरिवेशन के हेल्प से भी कर सकते हैं, बट इट इज कंसिडर ओनली वन ट्री. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज classification of derivation. There are two types of derivation: leftmost derivation and rightmost derivation. Clear? Before that, going to the definition of leftmost derivation tree and rightmost derivation tree, just एक point हमेशा याद रखना, हमने अभी डिस्कस किया ग्रामर G is equal to VTPS. Clear? In G is equal to VTPS, V representing non-terminal, T representing terminal. Clear? In any kind of ट्री, आपके पास किसी भी ट्री में तीन टाइप के नोड्स रहते हैं, है ना. फर्स्ट ए, जो सबसे ऊपर रूट नोड, देन इंटरमीडिएट नोड्स एंड लास्ट इज लीफ नोड्स. क्लियर? सो रूट नोड विल बी द ऑलवेज स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर. क्लियर? जो आपका टपल एस है, एस रिप्रेजेंटिंग स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर, तो जो भी एस है वो हमेशा रूट नोड होगा. क्लियर? ऑल द इंटरमीडिएट नोड्स बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल. जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं ट्री के, वो किसको बिलोंग करेंगे? दे बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल, एंड लीफ नोड्स शुड बिलोंग्स टू टर्मिनल. ये जितने भी टर्मिनल्स हैं वो सब डेफिनेटली लीफ नोड्स होंगे, क्योंकि टर्मिनल्स के लिए ग्रामर नहीं लिखी हुई है, उनको आप फर्दर डेरिवेट नहीं कर सकते. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन फर्स्ट. What is the definition of leftmost derivation? To derivate an input string W if always leftmost non-terminal of production will be derived on first priority, then derivation is called leftmost derivation. Very simple definition. Clear? आपको इसको सिंगल लाइन में ही याद रखना है. And the sequence of derivation is called left sentential form. Clear? In short, इससे भी इजी वे में आपको बताता हूँ. What is leftmost derivation tree? At the time of derivation, अगर आप leftmost non terminal को first priority पे रखते हो, हमेशा जो भी leftmost non terminal है उसका derivation first priority पे रखते हो, तो वो leftmost derivation tree होगा. ये उससे जो भी tree generate होगा, that will be the leftmost derivation tree. Leftmost non terminal should be derived first. Remember that tagline. What is leftmost derivation? Leftmost non-terminal should be derived first. Clear? For example, यहाँ एक स्ट्रिंग है id प्लस id स्टार id और एक ग्रामर दिया हुआ है. ये ग्रामर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. e ड्राइव्स टू e प्लस t ऑब्लिक t, t ड्राइव्स टू t स्टार f ऑब्लिक f एंड f ड्राइव्स टू id ऑब्लिक लेफ्ट पैरेंथेसिस e राइट पैरेंथेसिस. तो ये ग्रामर की शायद रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस है नहीं आपके इनपुट स्ट्रिंग में. बट एनीवे, आपको इस पर्टिकुलर ग्रामर को यूज करके ये स्ट्रिंग को डेरिवेट करना है और कौन सा डेरिवेशन ट्री बनाना है? लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन ट्री. सो सी फर्स्ट, बिकॉज ई इज द स्टार्ट सिंबल, ऑलवेज इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो फर्स्ट नॉन टर्मिनल रहेगा, फर्स्ट ग्रामर का जो फर्स्ट नॉन टर्मिनल रहेगा, दैट विल बी द स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट. डेरिवेशन ट्री है तो टॉप डाउन अप्रोच से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट रूट नोड इज ई एंड ई ड्राइव्स टू e plus t like that. See the tree simultaneously, e drives to e plus t. Clear? Then what is the leftmost non-terminal on right hand side? In right hand side leftmost non-terminal is e. इसको मैंने अलग कलर दिया है. And plus is the leaf node. Plus को green, जो भी leaf node बनता जाएगा मैं उसको green कलर दे रहा हूँ. In derivation tree plus is a leaf node. Clear? वो black कलर से रिप्रेजेंट किया है. सो कलर कॉम्बिनेशन इसीलिए दिए हैं जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन ऑन राइट हैंड साइड, व्हाट इज द लेफ्टमोस्ट नॉन टर्मिनल? लेफ्टमोस्ट नॉन टर्मिनल इज ई, मींस नेक्स्ट डेरिवेशन ई का होगा. तो ई का क्या डेरिवेशन होगा? यू कैन अंडरस्टैंड. देखो इनपुट स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करो. प्लस प्लस आपको मिल चुका है. प्लस के पहले क्या है? प्लस के पहले है आईडी, मीन्स आपको ई से आईडी को डेरिवेट करना है. क्लियर? मिल गया टारगेट. ई से किसको डेरिवेट करना है? आईडी को. बट इन ग्रामर आईडी एफ से डेरिवेट हो रहा है. ई से डायरेक्टली आईडी डेरिवेट हो सकता है क्या? नो. सो आपको आईडी को डेरिवेट करना है तो आपको उसका पेरेंट एफ होना चाहिए. क्लियर? सो अब आपके पास ऑप्शन है ई
और आपको यहाँ पे इस पोजीशन पे कौन चाहिए, आईडी। तो ई से आईडी जाने के लिए आपके पास सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस रहेंगे। ई से आप टी को डेरिवेट करेंगे, टी से एफ को डेरिवेट करेंगे और फिर एफ से आईडी को डेरिवेट करेंगे। क्लियर? जब तक आईडी डेरिवेट नहीं हो जाएगा तब तक आप लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को ही डेरिवेट करेंगे, लाइक दैट। देखिए, ई से टी को डेरिवेट किया, हियर आल्सो, क्लियर? साइमल्टेनियसली देखते रहिए। देन टी से एफ को डेरिवेट किया, हियर आल्सो। देन एफ, सो एफ ड्राइव्स टू आईडी। क्लियर? आईडी इज ए लीफ नोड, तो वो ग्रीन कलर हो गया। यहाँ एफ ड्राइव्स टू आईडी। क्लियर? तो आपके पास दो टर्मिनल्स, दो लीफ नोड मिल चुके हैं, आईडी प्लस। अब आईडी प्लस के लिए के बाद आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट सब एक्सप्रेशन जो रिमेनिंग है, दैट इज आईडी स्टार आईडी। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। क्लियर? और यहाँ क्या है आपके पास, नोड क्या है, नोड अवेलेबल इज टी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। नाउ व्हाट यू कैन से, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ऑन राइट हैंड साइड, ये दोनों तो टर्मिनल है, तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन हुआ, टी। तो टी से आपको क्या डेरिवेट करना है, टी से डेरिवेट करना है आईडी स्टार आईडी। तो टी की ग्रामर क्या है, टी स्टार एफ वी कैन यूज बिकॉज हियर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज अवेलेबल। सो लेट्स स्टार्ट। टी राइट्स टू टी स्टार एफ, टी राइट्स टू टी स्टार एफ। नाउ लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इज अगेन टी। अब टी की पोजीशन पे कौन चाहिए, टी की पोजीशन पे आपको चाहिए आईडी, मींस प्लस और स्टार के बीच में आईडी चाहिए। यहाँ पे भी आप देखिए प्लस और स्टार के बीच में आपके पास टी है, टी से आईडी चाहिए। तो टी से आईडी कैसे मिलेगा, वही सेम, टी से एफ, एफ से आईडी। सो टी से एफ एंड एफ से आईडी। क्लियर हो गया? ये भी इट्स वेरी सिंपल। नाउ एफ इज ओनली रिमेनिंग एंड एफ से आपको एफ की पोजीशन पे कौन चाहिए अकॉर्डिंग टू इनपुट स्ट्रिंग, दैट इज आईडी। So we will simply use f drives to id. Clear? The complete string is derivated now. Easy? So this is called derivation tree, complete derivation tree. और अब ये derivation tree को मैं क्या बोलूँगा? It is a leftmost derivation tree because we are using that sequence of derivation 1, 2, 3 up to 8. Sequence of derivation is called left sentential form. क्लियर? ये लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म है क्योंकि हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके ये सीक्वेंस जनरेट किया है। क्लियर? ट्री आल्सो कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। क्लियर? नेक्स्ट इज राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। लिसन हियर, राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, सेम डेफिनेशन। यहाँ राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को पहले डेरिवेट करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। टू डेरिवेट एन इनपुट स्ट्रिंग w, if always rightmost non-terminal of production will be derivate on first priority, then the derivation is called rightmost derivation tree and sequence of derivation is called right sentential form. बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, rightmost non-terminal of production will be derivate on first priority. ये याद कैसे रखेंगे, what is RMD, in which rightmost non-terminal should be derivate first. Clear? Example, again same example, same grammar, same string, but now the derivation tree will be RMD, rightmost derivation tree. Clear? अब आप डिफरेंस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री का। हियर अगेन द सेम प्रोडक्शन e raised to e plus t. Now rightmost non terminal is t. प्रीवियस ग्रामर में आपने देखा था, प्रीवियस प्रोडक्शन में इन LMD हमने किसको डेरिवेट किया था फर्स्ट, e को, बिकॉज e इज द लेफ्ट मोस्ट। हियर वी विल डेरिवेट t, t इज द राइट मोस्ट। सो आफ्टर प्लस you need id star id, so we will use the production of t is t star f, like that. आप देखते रहिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। t star f, now rightmost is f, so f drives to id directly, here also f drives to id. Now t drives to f, now f drives to id, then e drives to t, t drives to f, and f drives to id. Again the complete string, same sequence, same number of productions, that is 8. Yeah, but sequence of production is different. Yeah, वहाँ LMD में डिफरेंस, सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस अलग थे और RMD के केस में अलग हैं। Yes, but tree, you can see that tree is exactly same. Yes,
सो आपको सामने अगर शिफ्ट ट्री हो तो आप इसको डेरिवेशन ट्री ही बोल सकते हो। आप शिफ्ट ट्री देख के बता नहीं सकते कि वो आरएमडी है कि एलएमडी है। जब तक कि उसका सीक्वेंस आपके पास नहीं है तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये ट्री आरएमडी है या फिर एलएमडी है। क्लियर? इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इस सीक्वेंस को बोलते हैं राइट सेंटेंशियल फॉर्म। क्लियर? इट इज a right sentential form. Clear? So that is all about leftmost derivation and rightmost derivation. One more example using the same productions. Here parentheses are also available. मैं सिर्फ यहाँ LMD बना के दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको RMD के लिए भी ट्राई कीजिए और कोई डाउट आए तो मेरे से पूछिए प्लीज। कमेंट में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो इसका LMD के लिए प्रोडक्शंस एंड ट्री साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से। फर्स्ट इज ई राइज टू पी। जैसे यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता देता हूँ। Why we are selecting e raised to p here? Because in this particular string you can observe what is the last operation. There are two operations, addition and multiplication. So what will be the last operation? Last operation will be the multiplication. Clear? If last operation is multiplication, then you can say that which production we will use first, p raised to p star f. बट आपका रूट नोड कौन है? रूट नोड तो ई है और आपको चाहिए मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन की ग्रामर अगर टी के पास है तो आपको रूट नोड से टी को डेरिवेट करना पड़ेगा। क्लियर? सो विल यूज ई राइज टू टी फर्स्ट, देन टी राइज टू टी स्टार एफ लाइक दैट, देन टी राइज टू एफ। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, हम हमेशा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। सो टी राइज टू एफ, देन एफ राइज टू लेफ्ट पेरेंथेसिस ई राइट पेरेंथेसिस। मल्टीप्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पेरेंथेसिस के अंदर कुछ सब एक्सप्रेशन है और ये ग्रामर है एफ के पास, तो हमने एफ को डेरिवेट किया लेफ्ट पेरेंथेसिस ई राइट पेरेंथेसिस। तो लेफ्ट पेरेंथेसिस, राइट पेरेंथेसिस एंड स्टार, ये तीनों आपके लीफ नोट्स हो गए लाइक दैट, तीनों ब्लैक से रिप्रेजेंटेड है। देन ई राइज टू ई प्लस टी, अंदर एडिशन ऑपरेशन है तो वी विल यूज ई राइज टू ई प्लस टी। देन e raised to p, बिकॉज e की पोजीशन पे मुझे id चाहिए और id के लिए मुझे f तक जाना पड़ेगा। सो e raised to p, t raised to f and f raised to id। क्लियर? सो लेफ्ट पेरेंथेसिस id प्लस नाउ t, t की पोजीशन पे भी id चाहिए आपको, करेक्ट? सो हाउ कैन वी यूज t raised to f, क्लियर? f raised to id हो गया सर। रिमेनिंग इज f ओनली, f की पोजीशन पे id चाहिए, वी हैव that production f raised to id. Yes, so that is a leftmost derivation tree. This sequence, total number of productions 11. That sequence is called left tangential form and that tree is leftmost derivation tree. Clear? आपको क्या करना है? आपको इसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक RMD क्रिएट करना है और उसका एक इमेज मुझे भेजना है। क्लियर? आप कमेंट में भी भेज सकते हैं और मेरे पास, आप जिनके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इसका आरएमडी क्रिएट कीजिए, ट्री ऐसा ही बनेगा एग्जैक्टली बट आरएमडी में सीक्वेंस अलग रहेगा। क्लियर? सो दैट इज exercise for you. So I think you can understand that concept of leftmost derivation and rightmost derivation very well. We will use that concept in future topic in parsing techniques, top down and bottom up. Thank you very much. Keep watching, stay home, stay safe. हमेशा बोलता हूँ घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।